السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ مرکزی حکومت نے سابق وزرائے اعظم پی وی نرسمہا راؤ، چودھری چرن سنگھ اور سبز انقلاب کے بانی ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن کو ملک کے اعلیٰ ترین سویلین اعزاز بھارت رتن دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپوزیشن پارٹیوں سے کہا کہ وہ تعمیری تجاویز پیش کریں۔ وزیر اعلیٰ نے گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر کا جواب دیا۔ BRS کے ارکان اسمبلی و کونسل آج آٹو رکشہ میں اسمبلی پہنچے۔ آٹو ڈرائیوروں کے مسائل کو نظر انداز کرنے کے خلاف بطور احتجاج BRS ارکان نے آٹو میں سفر کیا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بتایا کہ ملک میں عام انتخابات سے پہلے تقریباً 97 کروڑ رائے دہندوں نے رجسٹریشن کرایا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مرکزی حکومت نے سابق وزرائے اعظم پی وی نرسمہا راؤ، چودھری چرن سنگھ اور سبز انقلاب کے بانی ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن کو ملک کے اعلیٰ ترین سویلین اعزاز بھارت رتن دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اعلان کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پی وی نرسمہا راؤ نے مختلف حیثیتوں سے ملک کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کی دور اندیش قیادت نے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے اور ملک کی ترقی کے لیے مضبوط بنیاد ڈالنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور عوام نے سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کو بھارت رتن دینے پر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ کے ہر شہری کے لیے فخر کا مقام ہے۔ انہوں نے ریاست کے عوام کی جانب سے پی وی نرسمہا راؤ کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے پی وی نرسمہا راؤ کی خدمات کو یاد کیا۔ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کو بھارت رتن اعزاز پر کہا کہ یہ پورے ملک کے لیے فخر کا موقع ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے اپنے اصلاحات کے ذریعے ملک کی ترقی کے لیے اہم بنیاد رکھی تھی، جس کے لیے ملک انہیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ و BRS صدر کے چندر شیکھر راؤ نے بھی پی وی نرسمہا راؤ کی خدمات کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو بھارت رتن ملنا تلنگانہ کے عوام کے لیے ایک اعزاز ہے۔ اسی دوران کریم نگر ضلع کے ونگارا گاؤں کے لوگوں نے جشن منایا۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں آج BRS کے MLCs نے سیاہ رومال گلے میں ڈال کر احتجاج کیا اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ان کے خلاف نازیبہ الفاظ پر غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ آج صبح کونسل کا اجلاس شروع ہونے کے فوراً بعد کونسل چیئرمین جی سکندر ریڈی کو ایوان کی کارروائی 10 منٹ تک ملتوی کرنی پڑی۔ حال ہی میں ایک نیوز چینل کو انٹرویو کے دوران ریونت ریڈی نے مبینہ طور پر قانون ساز کونسل کے ارکان کے خلاف نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ ایوان کی کارروائی ملتوی ہونے کے فوری بعد حکومت نے ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ اور دیگر ارکان کو BRS لیڈروں سے مذاکرات کے لیے بھیجا تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ کونسل چیئرمین جی سکندر ریڈی کے چیمبر میں منعقدہ اجلاس کے دوران ریاستی وزیر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کونسل کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے اپنی وضاحت پیش کریں گے، تاہم BRS MLCs ریونت ریڈی کے معافی مانگنے کے مطالبے پر اڑے رہے۔ حالانکہ کونسل چیئرمین نے کہا کہ BRS کی شکایت مقننہ سیکریٹری کو روانہ کر دی گئی، تاہم اس کے باوجود بھی BRS MLCs کا احتجاج جاری رہا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپوزیشن پارٹیوں سے کہا کہ وہ آبپاشی سمیت دیگر معاملوں میں تعمیری تجاویز پیش کریں۔ اسمبلی میں گورنر کے خطبے پر شکریہ کی تحریک پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ریاست میں آبپاشی پروجیکٹوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ارکان اسمبلی کے علاوہ عام افراد بھی سیکریٹریٹ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے تمام پارٹیوں سے کہا کہ وہ ریاست کی تنظیم نو کے لیے اجتماعی طور پر کام کرے۔ ریونت ریڈی نے اسمبلی میں گزشتہ 2 دنوں سے اپوزیشن لیڈر چندر شیکھر راؤ کی غیر حاضری پر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے 6 وعدوں کو 100 دنوں کے اندر پورا کیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اقلیتوں پر بھی خاص توجہ دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بتایا کہ ملک میں عام انتخابات سے پہلے تقریباً 97 کروڑ رائے دہندوں نے رجسٹریشن کرایا ہے۔ کمیشن نے اسے دنیا کا سب سے بڑا ووٹر رجسٹریشن قرار دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ سال 2019 سے اب تک ووٹر رجسٹریشن میں 6% اضافہ ہوا ہے۔ کمیشن کے مطابق 1 مہینے تک چلائی گئی خصوصی مہم کے دوران مرد حضرات کے مقابلے خواتین کے رجسٹریشن زیادہ ہوئے۔ کمیشن کے ڈیٹا میں 18 سے 29 سال کی عمر کے 2 کروڑ سے زیادہ رائے دہندوں کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے آج اسمبلی میں یقین دلایا کہ کانگریس حکومت ریاست میں آٹو ڈرائیورز کے مسائل کو حل کرنے کے عہد کی پابند ہے۔
गवर्नर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान पूनम प्रभाकर ने आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक 15 करोड़ खवातीन ने आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र किया, जिसकी माहाना टिकट की लागत 523 करोड़ रुपये हुई है। उन्होंने साबिक बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुजव्वज़ा मालियाती इमदाद फ़राहम करने में नाकाम रही। रियासती वज़ीर ने बीआरएस कायदीन पर ऑटो ड्राइवर्स के इस्तेहसाल करने और आरटीसी वर्करों के मसाइल पर तवज्जो न देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ख़वातीन के बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत का दिफा किया और इस पर एतराज़ करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। बीआरएस रुकन असम्बली टी राजेश्वर रेड्डी ने अपने खिताब के दौरान कांग्रेस पर झूठे दावे करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने आरटीसी मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन का दर्जा देने का मुतालबा किया और हुकूमत पर अपने वादों को पूरा न करने का इल्ज़ाम लगाया। राजेश्वर रेड्डी ने खुदकशी करने वाले ऑटो ड्राइवरों के अरकान ख़ानदान को मुआवजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान खुदकशी के 21 वाक़यात पेश आए हैं। बीआरएस के अरकान कौंसिल व अरकान असम्बली आज ऑटो रिक्शा में असम्बली पहुंचे। ऑटो ड्राइवरों के मसाइल को नज़रअंदाज करने के खिलाफ बतौर एहतजाज बीआरएस अरकान ने ऑटो में सफ़र किया। अरकान असम्बली हरीश राव, तलासानी श्रीनिवास यादव, सुधीर रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, विवेकानंदा, एम कृष्णा राव, पी कौशिक रेड्डी और एमएलसी सत्यावती राठौर एमएलए क्वार्टर्स हैदरगुड़े से बज़रिए ऑटो असम्बली पहुंचे। इस मौके पर हरीश राव ने रियासत में कांग्रेस में इक़्तिदार में आने के बाद ऑटो ड्राइवरों को दरपेश मसाइल को उजागर किया। उन्होंने गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान 21 ऑटो ड्राइवरों की मुबैना खुदकशी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 6.5 लाख ऑटो ड्राइवर अपने EMI भरने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने मुतवफ़ी ऑटो ड्राइवरों के अरकान ख़ानदान को फ़ीकस 10 लाख रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि फसल बीमा योजना, आबपाशी पॉलिसी और अक़ल तरीन इमदादी कीमत समेत दीगर सरकारी स्कीमों से मुल्क के किसान बाइख्तियार बन रहे हैं। नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के 62वीं कन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क की तरक्की में शोबे ज़राअत का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि हालांकि हुकूमत किसानों की आमदनी में इजाफा करने, उन्हें इनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, ताहम इस ज़िम्मन में मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत अर्जुन मुंडा ने ICARI की 30 मुख्तलिफ़ फसलों के अक़साम जारी किए। मौलाना मोहम्मद शरीफ अहमद मुज़ाहिरी क़ासमी नाज़िम इदारे इन्वारुल मदारिस ट्रस्ट की इत्तला के बमूजिब हफ्ता 10 फरवरी 29 रजब को बाद नमाज़ शाम मुत्तसिल रूबरू मस्जिद अल्लामा अनवर शाह इदारे इन्वारुल मदारिस ट्रस्ट संतोष नगर कॉलोनी हैदराबाद में तकमील हिफ्ज़ कुरान बउनवान कुरान का पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम से एक जलसा होने जा रहा है, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद बानईम मुज़ाहिरी नायब नज़ीम मजलिस इल्मिया करेंगे और मौलाना मुनीरुद्दीन अहमद उस्मानी उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद, क़ारी मोहम्मद शफीक़ुर रहमान उस्ताद दारुल उलूम देवबंद, मुफ्ती मोहम्मद साले अमीन मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, मौलाना मोहम्मद मूसा खान नदवी और मौलाना मोहम्मद मुजाहिद हाज़रीन मजलिस से खिताब करेंगे। जनाब मुज़फ़्फ़र हुसैन कॉरपोरेटर संतोष नगर, जनाब मोहम्मद अशफाक रुकन असम्बली, जनाब जाफ़र हुसैन मेराज बतौर मेहमान खुसूसी पुलिस अहदेदार शिरकत करेंगे। आमतुल मुस्लिमीन से जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात 9440856251 या 9247886910 पर रब्त फरमाएँ। त्रिपाल के अहल खाना और रिश्तेदारों ने अलवाल रिलायंस स्मार्ट के सामने धरना दिया। मक़तूल के वालिदैन और लवाहिक़ीन ने मुतासिरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। अलवाल PS में कल पेश आए एक हादसे में 9 साला लड़का त्रिपाल अपनी जान से हाथ धो बैठा। रिश्तेदारों का एहतजाज जारी है जब तक त्रिपाल के ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिल जाता, जो बगैर किसी वजह के अपनी जान से हाथ धो बैठा। DCM ड्राइवर फरार बताया जाता है। నా పిల్లగాడు పెట్టుకుని చచ్చిపోతా ఇంకా కూడా వాడు వస్తలేడు
ఆయనకి పిల్లగాడు లేరా, పిల్లలు లేరా? నా బాబు పోయిండు, ఆయన లేకుంటే ఎట్లా బతుకుతాం కదా. న్యాయం జరగాలి వెంటనే, బాధ్యులపై వెంటనే, బాధ్యులపై వెంటనే రక్షణ లేని రిలయన్స్ అల్వాల్లో, రక్షణ లేని రిలయన్స్ అల్వాల్లో We want justice. We want ఒక ప్రాణం పోనీయమ్మా, ఒక ప్రాణం పోనీయం అల్వాల. రిలయన్స్ స్టోర్ దగ్గర ఉన్నాం. నిన్న మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ఆ యొక్క చిన్న బాబు ఈ రిలయన్స్ అటుపక్కన వెళ్తున్నాడు. ఆయనకు ఏ సంబంధం లేదు పాపం. ఆ చిన్న బాబుని వీళ్ళు ఇంత ఎత్తు మీద గూడ్స్ అన్లోడింగ్ కోసం, లోడింగ్ కోసం ఒక ట్రక్కును పెట్టేసి ఆ యొక్క డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఆ బండి పోయి ఆ పిల్లగాన్ని గుద్ది చనిపోవడం జరిగింది. నిన్న 3:30కి మొదలు పెడితే రాత్రి 11 గంటల వరకు కూడా మేమందరం పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నాం. ఈ యొక్క రిలయన్స్ ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉందంటే, వీళ్ళు వస్తున్నారు, వాళ్ళు వస్తున్నారు, వీళ్ళతో మాట్లాడతామని చెప్పి వాళ్ళు మొత్తం కాలయాపన చేసి పూర్తిగా టైంపాస్ చేసినారు. ఆ యొక్క తల్లి గోస ఇప్పటి వరకు కూడా తీర్చలేదు. ఆ తల్లికి న్యాయం జరుగుతలేదు. ఈ సందర్భంగా మేము ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నాం, ఏంటంటే అసలు ఈ రిలయన్స్ కి ఇక్కడ సేఫ్టీ ఉన్నదా? సేఫ్టీ మెజర్మెంట్ తీసుకున్నారా? ఎవరైనా కానీ కూడా గూడ్స్ అన్లోడింగ్ లోడింగ్ కు అంత ఎత్తు మీద ఎవరు పెట్టరు. అక్కడ చాలా ఎత్తున్నది. అంత ఎత్తు మీద నువ్వు గూడ్స్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ ఎట్లా చేస్తావు? నువ్వు నీకంటే ఒక డక్యార్డ్ ఉండాలి. ఆ డక్యార్డ్ లో వచ్చి గూడ్స్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ జరగాలి తప్పించి అంత ఎత్తు మీద పెట్టడానికి నీకు ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చిండు? ఈ అల్వాల్లో నువ్వు అంత ఎత్తున గూడ్స్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ చేసి ఎంతమంది ప్రజల ప్రాణాలు తీస్తావు? ఇవాళ ఒక హత్య జరిగింది, రేపు ఇంకో వారం రోజులకి ఇంకా జరగని నువ్వు గ్యారెంటీ ఇస్తావా? ఎందుకంటే నీ ప్లేస్ అంత లేదు. నీ ప్లేస్ మొత్తం పూర్తి మెజర్మెంట్, సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ లేవు. అందుకని చెప్పి ఆ యొక్క తల్లి గోస తీరే వరకు కూడా, ఆ తల్లికి న్యాయం జరిగేంత వరకు కూడా ఈ రిలయన్స్ మరి మూతబడి ఉంటది. రక్షణ లేని రిలయన్స్, సేఫ్టీ మెజర్మెంట్ తీసుకుని రిలయన్స్ ఇక్కడ అల్వాలో మాకు అవసరమే లేదు. ఇక్కడ ఎటువంటి సేఫ్టీ లేదు. దీనికి ఇంకొకటి, ఆ డ్రైవర్ కి ఎటువంటి ఇన్సూరెన్స్ కూడా లేదు. అంటే ఇన్సూరెన్స్ లేని డ్రైవర్ ని మీరు హైర్ చేసుకొని సేఫ్టీ మెజర్మెంట్ తీసుకోకుండా ఈడ అల్వాల్లో మీరు రిలయన్స్ పెట్టి ఎంతమంది ప్రాణాలు తీస్తారు? మీరు కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ చేస్తుండొచ్చు, కానీ ఆ పోయిన పిల్లగా ప్రాణం తీసుకురాగలుగుతారా? మీరు ఆ తల్లి యొక్క గోసను తీర్చగలుగుతారా? దీన్ని మీరు ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు? తప్పకుండా ఆ తల్లికి న్యాయం జరగాల్సిందే. జరిగినంత వరకు రిలయన్స్ ఇక్కడ నడిచే ప్రసక్తే లేదు. సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నంత వరకు రిలయన్స్ మూతబడి ఉంటది. सीएनजी सिलेंडर को काटकर इसमें गांजा छुपाकर सप्लाई करने वाले 4 शातिर चोर हुए गिरफ्तार। आज पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में मेडशल जोन की डीसीपी मोहतरमा नीतिका पंत आईपीएस ने प्रेस मीट करते हुए बताया कि मेडशल पुलिस एसओटी मेडशल टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 65 किलो गांजा, 2 4 व्हीलर कारें, 6 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए, जिसकी कीमत 40 लाख रुपये बताई जा रही है। एसओटी की इंफॉर्मेशन पर मेडशल पुलिस एंड एसओटी टीम साथ मिलकर 2 व्हीकल्स को पकड़ा, जो व्हीकल्स गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू आगरा। ये पहला व्हीकल पायलट कर रहा था टू चेक फॉर ये देखने के लिए कि रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई पुलिस ना आए या कुछ कनहरे ना। और सेकंड व्हीकल में गांजा हिडन था, छुपा था। जो सेकंड व्हीकल है, जो स्विफ्ट डिजायर व्हीकल था, उसमें गांजा सीट्स के नीचे था, बैक सीट के पीछे वाले कुशन में, और बैक में जो डिक्की रहती है उसके अंदर एक फेक सीएनजी सिलेंडर था। उस सीएनजी सिलेंडर के अंदर गांजा छुपा हुआ था। ये इस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन जिसमें सीएनजी सिलेंडर के अंदर छुपा हुआ और सीएनजी कट करने के बाद ही पता चले, जो इस टाइप का मोडस ऑपरेंडी पहली बार इंडिया में हुआ है, इसलिए ये पहली बार हमको पता चला है। ये जो 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, इनका नाम है अरविंद, अभिषेक तोमर, आशीष कुशवाहा और आकाश सोलंकी। अभी इन्वेस्टिगेशन पर पता चलेगा इनके लिंक्स क्या थे और फर्दर ये कहां और कौन सप्लायर, और फर्दर डिटेल्स उनकी इन्वेस्टिगेशन पर पता चलेगा। कोई भी टाइप का नशीला पदार्थ
ड्रग्स, गांजा, कोई भी नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हेल्थ के लिए, आरोग्य के लिए एवं समाज के लिए हानिकारक है। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस है कि इसको कंप्लीटली फेज आउट करने के लिए। तो उसी ट्रायल में उसी की एक कोशिश ये रही है कि किसी इंटेलिजेंस पर एक्ट करके ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ है। थैंक यू। जगतियाल जिले कोरटला में कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने कोरटला के नवाही इलाके अर्बन कॉलोनी में कत्ल का मामला हल कर लिया। राघु नामी नौजवान ने अपनी मां के खिलाफ बुरी खबर फैलाने पर वेंकटरामन को चाकू मार कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया। सीआई परवीन कुमार, एसआई किरण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। आइए देखते हैं कोरटला से मोहम्मद यूनुस की ये रिपोर्ट। నిన్న తేదీ 8/2/2023 రోజున సాయంత్రం అందాజ 5 గంటల ప్రాంతంలో అర్బన్ కాలనీలో ఈ హన్మల్ల వెంకటరమణ అనే వ్యక్తిని వాసాల రఘు అనే వ్యక్తి కత్తితో పొడిచి చంపడం జరిగింది. ఇటు విషయంలో మృతుని యొక్క భార్య హన్మల్ల పావని దరఖాస్తు మేరకు ఇటు విషయం పైన కేసు నమోదు చేసి దీంతో మా పై అధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఈ అక్యూజ్డ్ అయినటువంటి వాసాల రఘును పట్టుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ మర్డర్ గల కారణము గతంలో ఈ మృతునికి మరియు నేరస్తునికి మధ్యలో పాత కక్షలు ఉన్నవి. అదేవిధంగా ఇతని పైన మృతుడు గతంలో కేసులు పెట్టించాడని, అదేవిధంగా మృతుడు నేరస్తుని యొక్క కుటుంబం గురించి, అదేవిధంగా వాళ్ళ మదర్ గురించి బయట తప్పుడు మాట్లాడుతున్నారని చెప్పి కక్ష పెంచుకొని నిన్న అతన్ని కత్తితో పొడిచి చంపడం జరిగింది. ఈరోజు అట్టి వ్యక్తిని అతని ఇంటి వద్దే పట్టుకొని క్రైమ్కి సంబంధించినటువంటి క్రైమ్ వెపన్ను, కత్తిని, అదేవిధంగా తన యొక్క క్రైమ్లో భాగంగా వాడినటువంటి మోటార్ సైకిల్ని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ తదుపరి ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇంకా ఫర్దర్గా ఏమైనా వస్తే మళ్ళీ తెలియడం జరుగుతుంది. हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद मोइनुद्दीन क़ादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मौजिज़े अता किए। जिसने नमाज को कायम रखा, इसने दीन को कायम रखा। हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद मोइनुद्दीन क़ादरी इमाम व ख़तीब मस्जिद दरीबा बेगमज़ा छतरी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि अल्लाह ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मौजिज़े अता फ़रमाए। अल्लाह ने सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान पाक का अता फ़रमाया। नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम रखा, उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को तर्क किया, इसने दिन को ढा दिया। सजदा करने के लिए जब हम झुकेंगे तो उस वक्त हमारी पेशानी अल्लाह के बारगाह में सजदा करने के से कासिर हो जाएगी। हम सजदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन हम सजदा नहीं कर पाएंगे। आज मौका अल्लाह ताला दिया तो हमें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और पंजगाना नमाज अपने औकात पर अदा करें और जमात के साथ अदा करने की हम कोशिश करें और दुआ करें। जिस तरह आज हम ये हालात देख रहे हैं, अल्लाह ताला इससे हमें नजात अता फरमाए और हमारे मस्जिद मसाजिद जितने भी हैं, कहीं भी हो मस्जिद, चाहे गांव में हो, चाहे करिए में हो, चाहे शहर में हो, चाहे किसी और कोने में हो, मस्जिद मस्जिद ही है और क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। और तारीख गवाह है, जब भी मुसलमान मस्जिद बनाया है किसी और की जगह पर कब्जा करके नहीं बनाया है। सबसे पहले जीती जागती अगर मिसाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की जब तामीर करना चाहते हैं और मस्जिद बनाना चाहते हैं, 2 यतीम बच्चों की जगह थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कीमत अदा करने के बाद उसके बाद उसकी बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ दस्ते मुबारक से रखी है। इसी तरह मुसलमान जहां भी मस्जिद बनाए हैं वो किसी की जगह कब्जा करके नहीं बनाए हैं, बल्कि हक और हलाल कमाई को वो मस्जिद के लिए वक्फ किए हैं। उन्होंने मस्जिद के लिए वो जगह खरीदे हैं तो हक की और कमाई, हलाल की कमाई देकर उन्होंने खरीदा है और वहां पर अल्लाह की इबादत के लिए बुनियाद रखा है। और यही वजह है अल्लाह ताला कलाम मजीद में फरमाते हैं, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बेशक वही लोग अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, वही लोग अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। हमें चाहिए हम देखते हुए नहीं बैठना है, बल्कि हमें कोशिश करना है अपने इबादत गाहों की हिफाजत करना है। कैसे हिफाजत करना है? जहाँ जहाँ भी मस्जिद है, शहर में कितने भी ऐसे मसाजिद हमको देखने आता है कि जहां पर इमाम और मौज़िन के अलावा कोई नजर नहीं आता। हम इतने गफलत में हैं तो ये हमारी गफलत का फायदा गैर उठा रहे हैं। सिदरा फंक्शन हॉल बल्लागुड़े में शादी की तकरीब
उलमा इकराम और सियासी कायदीन की शिरकत। जनाब मोहम्मद यूसुफ अली के फ़र्जंद जनाब मोहम्मद फ़ुरक़ान अली की शादी जनाब मोहम्मद मुजाहिदुद्दीन साहब मरहूम की दुख्तर के साथ सिदरा पैलेस बल्लागुड़े में अंजाम पाई। जनाब जाफ़र हुसैन मिराज रुकन असम्बली, जनाब मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली, जनाब मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली, मौलाना सैयद सादात पीर बगदादी, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक पाशा, मौलाना अज़ीज़ पाशा खादी, मौलाना सैयद सत्तार हुसैनी बंदा नवाज़ी ने शिरकत की। मोहम्मद बशीर, मोहम्मद नेमत अली, खादर खान, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शाहिद, वाजिदुल्लाह शरीफ ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।